Hey guys, welcome back to my channel. I am Tanya and I came to Canada 3 years ago. Even now when I think about it, it feels like मैं कल ही Canada आई थी and it's hard to believe. जब भी कोई मुझसे पूछता है कि when did you come to Canada, I'm always saying कि हाँ मैं recently आई थी and then I think about it कि मैं 3 साल पहले आई थी Canada में. So since I just completed 3 years in Canada, I thought I would make a video talking about the things that I've learned, and for all of you who are planning to come here, this will give you some more insights into what your life in Canada is going to look like. And अगर आप confused हो कि आपको यहाँ आना है कि नहीं, then these things might help you make a decision. So let's get right into the video. Okay, but before we get into the video, guys, I have one request for all of you. Please hit the subscribe button and please subscribe to my channel to stay updated with more such informative videos. And your subscriptions and your likes and comments will really keep me motivated to do it. So please hit the like button and the subscribe button and comment away, and let's get into the video now. So number 1 is acceptance and flexibility. So आप जब इंडिया में होते हो तो you don't have a lot of things to worry about. You know you have your family who is going to be there for you. But जब आप यहाँ पे आते हो तो you are all you have and you need to accept the situation as it is because you don't have any other option. For example, something as simple as अगर आपको अपने बजट में घर नहीं मिल रहा है then you will have to share a room with someone. Now you might not even imagine something like that when you're at home, but यहाँ पे आके आपको वो करना पड़ेगा and you have to be ready for it. And I did it too, guys. I shared my room. You have to share your house with different people from different parts of the world. But trust me, guys, those are such great learning experiences, and those experiences have given me the best friends that I have right now. Be ready to be accepting. And जैसे आपके बजट में अगर नहीं मिल रहा है आपको घर, you will have to settle down for a basement. So be flexible for anything. अगर आपको आपके चॉइस की पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल रही है तो आपको कुछ और भी करना पड़ेगा. तो just come with an open mind and be ready for anything that life throws at you. So ये चीज़ आपको रखनी है अपने माइंड में, and I feel like that has made me so much more calmer as a person because now I know कि if things are not happening according to my will, I don't get very angry. I'm patient because I don't have any other choice. I don't have a home to go back to in Canada. Yeah, you are all you have over here, and that brings me to my next point, which is कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता. If you're going to come with a mentality in Canada कि you're not going to sweep the floor, you're not going to serve customers or anything like that, then Canada is not made for you guys. यहाँ पे हर काम को ये लोग equally treat करते हैं, and even if you are a server at a restaurant, you will still be treated with respect. So you have to come with an open mind. And as a student यहाँ पे mostly सब part time job करते ही है, and mostly वो सारे ऐसे labor jobs ही करते हैं. So you need to come with an open mind कि you're ready to do all of this, and also treat anyone who is doing this with respect, क्योंकि यहाँ पे हर किसी को वो बहुत respectfully बात करते हैं हर किसी के साथ. While I was a cashier, I used to have so many people who would come and chat with me so normally, which we would never do in India. So ये चीज़ जो है ये कनाडा में आके मैंने सीखी है, and I really like it. Everyone's treated equally and all work is the same. और ये बात जो है ये बाहर तो है ही है, लेकिन घर पे भी यही चीज़ है. सो घर पे भी आपको सब काम खुद ही करने हैं, बी इट कुकिंग, वॉशिंग डिशेस और क्लीनिंग योर बाथरूम. हर चीज़ आपको ही करनी है. सो ये मेंटालिटी जो है कि मैं बाथरूम नहीं साफ़ करूँगी या मैं डिशेस नहीं करूँगी, ये बिल्कुल भी नहीं है. एंड लड़के लड़कियाँ कोई भी हो, सब ये करते हैं. एवरीवन ओवर हियर नोज टू डू एटलीस्ट बेसिक कुकिंग, और वो करना ही पड़ता है सर्वाइवल के लिए. बी प्रिपेयर्ड फॉर दोज थिंग्स एंड डोंट वरी कि आपको वो नहीं आता है तो आप यहाँ नहीं आ पाओगे. व्हेन आई वाज इन इंडिया मुझे कुकिंग नहीं आती थी, बट यहाँ आके मैंने एटलीस्ट सर्वाइवल स्किल्स तो सीख ही लिए हैं. सो डोंट वरी, एंड यहाँ आके आप सब सीख जाओगे. बस यू नीड टू कम विद एन ओपन माइंड. नंबर 3, बजटिंग. सो कनाडा में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करने का मन करेगा, एंड आपको मन करेगा यू स्पेंड मनी ऑन इट एंड ट्राई दीज न्यू थिंग्स, ट्राई न्यू फूड, न्यू एक्टिविटीज़, गो आउट, एनीथिंग लाइक दैट. बट इनिशियल डेज में यू विल हैव टू बजट योर सेल्फ. फॉर अ लॉट ऑफ यू, इंडिया में आपको शायद कभी बजट नहीं करना पड़ा होगा, एंड यू जस्ट आस्क योर पेरेंट्स फॉर मनी एंड दे गिव इट टू यू. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. यू हैव अ बजट,
यू आर अर्निंग सम अमाउंट फ्रॉम योर पार्ट टाइम जॉब, आपके पास थोड़ी GIC से पैसे होंगे, बट इसमें से काफ़ी सारा जो होगा वो आपके रेंट में, आपकी ग्रॉसरीज में, आपके फ़ोन बिल में, ये सारे जो नेसेसरी एक्सपेंसेस है उसमें चले जाएगा. सो इसके लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बजट योर सेल्फ एंड कीप एन अमाउंट कि इतना मैं मंथ में स्पेंड कर सकती हूँ ऑन माई लग्जरीज. उसमें आप बाहर जाके खाओ और बाय समथिंग यू वॉन्ट, anything like that, but budgeting is very important because otherwise you don't have any savings here yet. Once you start working, 1-2 साल बाद आपके पास अच्छी खासी savings हो जाएंगी and then you can think of buying something expensive or splurging a little. But initial days में आपको थोड़ा सा तो cut down करना ही पड़ेगा. So that is really nice and I would say maintain a list of things that you're buying. Maintain a list कि आपको क्या चीज़ों पे इस महीने में खर्च करना है and just be really organized with those things. For example, इतनी सिंपल चीज़ है कि इंडिया में जब आप कभी कहीं बाहर जा रहे होते हो and for example you're taking a train and you don't get a train, so you can easily take an auto or a cab and go and you don't have to worry a lot. But अगर यहाँ पे आप वो करोगे आपका पूरा एक्सपेंसेस हिल जाएगा. So बजट करना बहुत ज़रूरी है एंड कनाडा में जो सर्विसेज है वो बहुत एक्सपेंसिव है. सो एनीथिंग दैट रिक्वायर्स ह्यूमन लेबर इज गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव. सो फॉर द गर्ल्स लाइक डूइंग योर नेल्स और गेटिंग अ हेयर कट, एनीथिंग लाइक दैट इज गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव. सो शुरू के महीनों में 6-7 महीनों में आपको शायद वो चीज़ों पे कट डाउन करना पड़ेगा, बट इवेंचुअली यू विल हैव इनफ सेविंग्स एंड यू विल अर्न टू बी एबल टू डू दोज थिंग्स. विच ब्रिंग्स मी बैक टू माई फर्स्ट पॉइंट विच इज एडजस्टमेंट, कि आपको एडजस्ट करना पड़ेगा एंड यू विल हैव टू बी ओके at least for the initial few days, and then once you get a full-time job you can get back to spending a little. Next point is independence. I miss that time when अगर मैं थोड़ी सी भी बीमार होती I would just lay down on my bed, not do anything and मेरे बेड पे ही सारा खाना आ जाता था, सब कुछ होता था, मुझे काम करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती थी. Well, if you're coming to Canada, that's not going to happen and you will miss that a lot. But अगर आप बीमार भी होगे ना guys, तो आपको हर चीज़ अपने आप करनी पड़ेगी. आपको खाना बनाना ही पड़ेगा या ऑर्डर करना पड़ेगा. बट यहाँ पे कोई इतना आपके लिए वो चीज़ें करेगा नहीं जितनी आपकी फैमिली करती है. येस, यू माइट हैव गुड फ्रेंड्स हु विल हेल्प यू अ लिटिल, बट इवेंचुअली यू आर ऑन योर ओन. सो हर चीज़ आपको इंडिपेंडेंटली करनी पड़ेगी. And be it taking care of yourself or managing your banking things or managing your work, anything and everything आपको सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा. For example, in India, I never used to manage my bank accounts that much, but यहाँ पे मुझे वो सब खुद करना पड़ता है. So you need to be independent, and when I say independent, it means you also need to be independent to enjoy on your own. So if you don't have anyone, go out, have dinner by yourself, go on a walk, go grab some coffee. So हर चीज़ के लिए आपको अकेले सीखना पड़ेगा करना. एंड व्हेन आई थिंक ये चीज़ मैंने बहुत अच्छी सीखी है यहाँ पे आके. इंडिया में आई फील लाइक आई वाज डिपेंडेंट ऑन माय फैमिली और माय फ्रेंड्स, एंड यू हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स देयर जिनके साथ आप जा सकते हो, बट यहाँ पे मेकिंग दोज बॉन्ड्स आर डिफ़िकल्ट. तो इसके लिए आप कई बार अकेले होगे. सो या लर्न दैट एंड लर्न टू बी इंडिपेंडेंट. एंड ट्रस्ट मी, ये चीज़ तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर एनी वन टू लर्न, एंड ये आपको आगे भी काम आएगी. नंबर 5, फ्रेंडशिप्स. इंडिया में आपको लगता होगा हर कोई आपका दोस्त है एंड यू डोंट रियली नीड योर फ्रेंड्स इन डिफिकल्ट टाइम्स अ लॉट. मोस्टली यू जस्ट हैंग आउट एंड एन्जॉय. यहाँ पे योर फ्रेंड्स आर योर फैमिली and it is important to build good bonds and choose quality over quantity. अगर आपके पास 1-2 भी अच्छे दोस्त हैं ना who are going to be there for you, that is it. You don't have to have 15 friends to be there जो आपकी मदद नहीं करेंगे when you need them. So yeah, choose that. And Canada has also taught me that not everyone is your friend and you shouldn't trust people so easily. I get a lot of people who message me when they're planning to come to Canada. They really talk to me well. They pretend like we are friends and then जब वो यहाँ आ जाते हैं and जब उनका काम हो जाता है, they don't even talk to me or they don't even make an effort to talk to me. And ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है. So yeah, Canada really teaches you कि
लोग आपसे दोस्ती करेंगे अपने मतलब के लिए, एंड देन दे वोंट रियली कम टू यू. सो चूज योर फ्रेंड्स वाइजली, डोंट ट्रस्ट एनीवन easily, and learn to value yourself, learn to say no. Which brings me to my next point. Canada has taught me how to say no. यहाँ पे जो लोग होते हैं ना, स्पेशली जो कनाडा में ही लोग हैं, दे रियली नो हाउ टू पुट देमसेल्व्स फर्स्ट एंड हाउ टू से नो. सो इफ़ दे आर एट वर्क एंड समवन आस्क्स देम कि मैनेजर उनसे पूछे कि कैन यू वर्क 2 hours एक्स्ट्रा प्लीज, लाइक समवन कॉल्ड इन सिक, and if they have a commitment they say no, we can't, I was only supposed to work till 5, I cannot work till 7. मुझे personally no बोलने में बहुत प्रॉब्लम होती है. even if I have somewhere to go, if someone's requesting me, I'll be like okay fine, I'll work. so ये चीज़ कनाडा ने मुझे सिखाई है. I've learned to say no. another thing जो कनाडा में बहुत वैल्यूड है वो है टाइम. सो यहाँ पे टाइम को बहुत वैल्यू करते हैं, एंड ये चीज़ आपको आते ही पता चल जाएगी. आपकी पार्ट टाइम जॉब भी होगी ना, वो आर्ली पेड होगी. सो हर घंटे के आपको पैसे मिलेंगे, एंड उससे आपको 1 मिनट भी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है. एंड सेम गोज़ फॉर पंक्चुअलिटी ऑल्सो. अगर आपकी 9 बजे की शिफ्ट है तो आपको 9 बजे ही शुरू करना है. इनफैक्ट 5 मिनट जल्दी आ जाते हैं यहाँ पे लोग. सो यहाँ के लोग काफ़ी पंक्चुअल है, एंड वो अपने टाइम को बहुत वैल्यू करते हैं. कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी आप ये देखोगे कि व्हेन अ जॉब सेज 9 to 5, इन मोस्ट केसेस वो 9 to 5 ही होता है. एंड एक्स्ट्रा आवर्स जो इंडिया में होता है ना कि लोग 10-10 बजे तक काम कर रहे हैं, ओवरनाइट काम कर रहे हैं, वो यहाँ पे बहुत कम होता है. एंड अगर हो भी तो भी यू आर पेड फॉर इट. सो या टाइम बहुत वैल्यूड है. एंड सेम गोज़ फॉर एनी स्टोर्स, बी इट ग्रोसरी स्टोर्स, बी इट मॉल्स, एनीथिंग लाइक दैट. उनके भी फिक्स टाइमिंग होते हैं. फॉर एग्जाम्पल संडे, ऑल ऑफ योर ग्रोसरी स्टोर्स ऑल्सो शट एट 6, द मॉल शट एट 6. तो आपको अपने आप को वो पूरा प्लान करके चलना पड़ता है कि इवन इफ़ आई वॉन्ट a pack of milk, I won't get it after 6 PM at my closest grocery store. So हर चीज़ आपको पहले से प्लान करनी पड़ती है. एंड ये लोग वर्क लाइफ बैलेंस को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं. सो इवन लाइक वर्कर्स एट मॉल्स और ग्रोसरी स्टोर्स हैव अ फैमिली, दे हैव अ वर्क लाइफ बैलेंस. तो वो संडे के दिन घर चले जाते हैं. यूजुअली दे आर ऑल अर्ली स्टार्टर्स, तो वो दिन की शुरुआत जल्दी कर देते हैं, एंड दे एंड द डे ऑल्सो क्विकली. सो द लास्ट थिंग दैट कैनेडा हैज़ टॉट मी इज़ पेशेंस एंड पोलाइटनेस. सो यहाँ के लोग जो है ना वो बहुत ही पोलाइट है. फॉर एवरीथिंग दे आर वेरी स्वीट. इवन इफ़ यू आर वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट दे आर लाइक हाय हाउ आर यू. कुछ भी हो गया तो सॉरी, थैंक यू, ये सारी चीज़ें कनेडियंस बहुत अच्छे से बोलते हैं, एंड दे आर रियली पोलाइट. अनदर थिंग इज़ दैट दे आर वेरी वेरी पेशेंट. आई डोंट नो वाई, दे जस्ट लव वेटिंग. बी इट वेटिंग इन लाइन्स एट ग्रोसरी स्टोर्स, और बी इट लाइक जब आप रोड क्रॉस कर रहे होते हो तो जैसे क्रॉसिंग होती है तो वहाँ पे यूजुअली इंडिया में अगर कोई गाड़ी होगी वो और स्पीड अप करके निकल जाएगी सो दैट दे कैन गो एंड देन यू विल क्रॉस. बट यहाँ पे द कार स्टॉप्स and they wait for you to cross and then they go even when they could have easily gone. So यहाँ के लोग बहुत ही पेशेंट है, एंड यहाँ रह के मैंने थोड़ा सा पेशेंस भी सीख लिया है. एंड आई हैव लर्नड हाउ टू बी पोलाइट. आई ग्रीट एवरीवन, इफ़ दे ग्रीट मी आई ग्रीट देम बैक. एंड यहाँ के लोगों को अच्छे से प्यार से बात करना बहुत पसंद है. या लाइक इट विल टीच यू हाउ टू बी पेशेंट एज वेल. जैसे आपको कभी बस के लिए वेट करना है तो यू हैव टू डू इट, यू हैव टू कीप वेटिंग. अगर आपको लाइन में वेट करना है ग्रोसरी स्टोर के लिए, आपको वेट करना पड़ेगा. सो ये पेशेंस आप सीखते हो. यू हैव नो अदर वे आउट ऑफ इट. दिस इज़ वॉट यू हैव टू डू. सो गाइज, दीज आर द थिंग्स दैट कैनेडा हैज़ टॉट मी. आई फील लाइक आप भी जब यहाँ आओगे तो आप पहले गलतियाँ करोगे एंड फिर आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे. सो ओवरऑल कैनेडा हैज़ मेड मी अ मच बेटर पर्सन. एंड अगर मैं कभी इंडिया वापस भी गई तो आई फील लाइक आई हैव बिकम अ मोर मैच्योर पर्सन, एंड मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है इस जगह से. So yeah, cheers to me completing 3 years in Canada. And अगर आप भी कनाडा में हो तो let me know in the comment section what are the things that Canada has taught you. And that's it for today's video guys. Hopefully आपको ये अच्छी लगी, informational लगी. And if you did like it then don't forget to like, comment and subscribe. And I will see you guys again soon. Till then, bye.